ৰাখিছোঁ আজি সুন্দৰ সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে আৰু আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ হয় আৰু আমি প্ৰত্যেকজনেই ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে নিজৰ নিজৰ স্থানত আমি আছোঁ যেহেতু লকডাউন পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি পবিত্ৰ ভৱনত গোট খাব পৰা নাই তথাপি ঈশ্বৰে আমাক সময় দিছে আমি ইজনে সিজনক দেখি নাপালেও আমি আত্মাৰে লগ পাই আছোঁ আৰু লগতে আমি এই ফেচবুক লাইভ আৰু ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ শিক্ষা ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি আনিব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ আমি আজিৰ উপাসনা আৰম্ভ কৰিম গীতমালা 106 এক পদ পাঠ কৰি মোৰ NIV বাইবেলত লিখা আছে Psalm 106 verse 1 Praise the Lord give thanks to the Lord for he is good his love endures forever ঈশ্বৰৰ বাক্যত আশীৰ্বাদ থাকক প্ৰাৰ্থনা কৰিম Praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah পবিত্ৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ যাচিছোঁ সুন্দৰ সময় সুযোগ আৰু আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আজি সুন্দৰ দিন আমাক দিলা বিশেষকৈ প্ৰভু পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ যোৱা 6টা দিন তুমি আমাক সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰিলা আৰু আজি এই পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ পালন কৰিবৰ কাৰণে দিলা তাৰ বাবে ধন্যবাদ দিওঁ আৰু এইখিনি সময়ত আমি তোমাৰ চৰণৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰভু তোমাৰ মহিমা প্ৰশংসা স্তুতি কৰিবলৈ গোট খাইছোঁ আমাৰ সকলো ভুল ভ্ৰান্তি অপৰাধসমূহ তুমি ক্ষমা কৰিবা যাতে প্ৰভু আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ সকলো প্ৰকাৰৰ বাধা দিওঁতা দুষ্ট আত্মাসমূহক মই আজ্ঞা দিছোঁ মোৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে যিমান বাধা দিয়া শিক্ষাত বাধা দিয়া আৰু ঈশ্বৰৰ শিক্ষা বিশ্বাসীসকলৰ ওচৰলৈ গৈ পাবৰ কাৰণে নিদিয়া বাধা দিয়া আত্মাসমূহক মই আজ্ঞা দিছোঁ যি ফেচবুক লাইভ আৰু ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি যি বিশ্বাসীসকলে আমাৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকক ঈশ্বৰৰ বাক্য বুজিবৰ কাৰণে নিদিয়া জানিবৰ নিদিয়া সাধন এৰি দে ইয়াত থকা যিমান বিশ্বাসীসকল আছে প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আজ্ঞা দিছোঁ হালেলুয়া প্ৰভু ধন্যবাদ দিওঁ তোমাৰ পবিত্ৰ শক্তিৰে আমাক বান্ধি ৰাখা মৰমীয়াল প্ৰভু এই সময়ত আমি যি উপাসনালৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ প্ৰভু তোমাৰ উপস্থিতি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ উপস্থিতি আমি আশা কৰিছোঁ এই সময়ত পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ কাৰণে আহা হালেলুয়া এই সময়ত মোৰ জীৱনত কাম কৰা যি বাক্য লোৱা হৈছে প্ৰভু এই বাক্যৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা মই শিক্ষা দিওঁতা নহয় প্ৰভু তুমি মোৰ মুখত থাকি কথা ক'বা আৰু এই বাক্যই যেন প্ৰত্যেকৰ জীৱনত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে যেনে আশীৰ্বাদ পায় প্ৰভু তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰিবা যি ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি প্ৰভু এই সকলোবিলাক কৰি থকা হৈছে তুমি তাতে আশীৰ্বাদ কৰিবা ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি যিসকল আমাৰ লগত জড়িত হৈছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা এই গোটেই ছাৰ্ভিচটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তোমাৰ নামত সমৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা দয়ালু প্ৰভু যীশুৰ নামত জনালোঁ आमेन 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 ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ हर एक भाई बहन को जो इस समय मेरे साथ जुड़े हैं फेसबुक लाइव के द्वारा यूट्यूब लाइव के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे I always try to bring some new messages to you so that you can have the better understanding of the word आप लोग सभी व्यक्ति लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए नया कुछ लेके आऊं The word of God is there already it's written and there is no newness in there but for us as we study regularly it seems like it's very new to us so I request all of you those who are connected with me right now please watch this video till the end so that you can understand the meaning of the word and you shall be blessed so आज मैंने भजन संहिता 1 से थोड़ा कुछ आप लोगों के लिए वचन लेना चाहता हूँ আজি গীতমালা 1ৰ ওপৰত মই কিছু কথা পাতিম আৰু গীতমালা 1ৰ সকলোৱে জানে পৰিচিত যিসকল আমি বাইবেল পঢ়ো গীতমালাটো 5টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেই 5টা ভাগৰ প্ৰথম গীতটোৱে হৈছে গীতমালা 1
আৰু এই গীতমালা একত আমি বহুতেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শিক্ষা দিয়া আমি দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ কিন্তু আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ শিক্ষা বা বেলেগ ধৰণৰ কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে মই জনাব বিচাৰিছোঁ So Psalm number 1 verse 1 the Bible says Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockery. অসমীয়া বাইবেলত এই বাক্যটো 1 আৰু 2 পদ মিলাই লিখা হৈছে আৰু 1 আৰু 2 পদ মিলাই এই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে কিয়নো কিছুমান কথা অলপ বহলকৈ লিখিব লগা হয় আৰু কিছুমান কথা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে শেষৰটো আগলৈ আগৰটো পাছলৈ নিব লগা হয় যি মানুহে দুষ্টবোৰৰ আলোচনাত নচলে পাপীবোৰৰ পথত থিয় নহয় আৰু নিন্দকবোৰৰ আসনত নবহে কিন্তু জিহুৱাৰ ব্যৱস্থাত সন্তুষ্ট হয় আৰু দিনে ৰাতিয়ে তেওঁৰ ব্যৱস্থা ধ্যান কৰে সেই মানুহেই ধন্য আৰু ইংৰাজী বাইবেলত এই ধন্য বা ব্লেছেড ৱৰ্ডটো প্ৰথমতেই আৰম্ভ কৰা হৈছে ব্লেছেড ইজ দ্য মেন হিন্দী বাইবেল যেতিয়া আমি পঢ়ো তাত লেখা আছে क्या ही धन्य है वो যিজন সেই ব্যক্তি কি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত বা ধন্য বা এইটো তেওঁ ব্লেছেড ওৱান বুলি বাইবেলত কৈছে সো প্ৰথমতে মই আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম ব্লেছ শব্দটোৰ অৰ্থ বা ব্লেছেড শব্দটোৰ অৰ্থটো আমি ইয়াতে কিছু জানিবৰ কাৰণে বিচাৰিম একচুৱেলি আমি সকলোৱে জানো ইব্ৰী ভাষাৰ পৰা বাইবেল অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু ইব্ৰী ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰোঁতে তাতে কিছুমান ভাষা বা ৱৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিবিলাকৰ সঠিক আমাৰ অসমীয়া বা ইংৰাজী ভাষাত পোৱা নাযায় সঠিক एक्यूरेट वर्ड तो पा ना जाए सो जब हम लोग ब्लेसेड या क्या ही धन्य कहते हैं तो हिब्रू वर्ड जो इसमें ब्लेस का जो धन्य का ब्लेस का जो वर्ड है उसमें हिब्रू वर्ड में 3 वर्ड है बेरक बोल के लिखा है मेरा स्पेलिंग इससे करना पड़ेगा बेरक या वारुक और इसमें लिखा है आस हेर ये 3 वर्ड आपको इसमें यूज्ड होता है जब ब्लेस वर्ड को बोला जाता है जब बेरक और बारुक इसको बोला जाता है तो उसको इंग्लिश में जब उसको देखा जाता है कॉन्सिक्रेट और सैंक्टिफाई पवित्रकरण करना पवित्रकृत करना उसको बोला जाता है बेरक और बारुक इस दोनों को जब ब्लेस वर्ड को बोला जाता है ब्लेस या असहेर इसको जब बोला जाता है तो किसी को प्रोनाउंस करना ये पवित्र है इट इज द गॉड हु कैन से as you are holy or you are sanctified one rather than nobody is there to say that you are holy or you are a sanctified one दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि हमें कह सके कि तू पवित्र है या तू अभिषेक तुम्हें मिला या तुम अभिषिक्त है एकमात्र परमेश्वर ही उसको कह सकता है तो परमेश्वर क्या करता है ब्लेस या ब्लेसेड या ब्लेसिंग परमेश्वर देता है ब्लेस बोलता है ब्लेस का अर्थ जो मैंने आपको बताया ब्लेस में जो हिब्रू वर्ड में 3 वर्ड हम लोग को मिलता है जब मैं इंग्लिश जो डिक्शनरी को देखा चाहे आप ऑक्सफोर्ड को देखिए चाहे आप मेरियम वेबस्टर को देखिए चाहे और जितना भी कॉलिंस है आप उसमें देखिएगा तो उसमें जो मीनिंग है इंग्लिश डिक्शनरी ब्लेस मीनिंग होली ब्रिंगिंग हैप्पीनेस और कंफर्ट ब्लेस का अर्थ ब्लेस का मीनिंग लिखा गया है होली और ब्रिंगिंग हैप्पीनेस किसी को सुखवान किसी का लाइफ में खुशियाँ लाना और कंफर्ट उसको कंफर्ट करना सांत्वना प्रदान करना तो ये ब्लेस वर्ड का मीनिंग होता है
सो मैं आज आपको एक कैसे एक आशीषित व्यक्ति या आप कैसे एक क्या ही धन्य व्यक्ति बन सकते हैं उसका बारे में थोड़ा आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सा भाई मुझे कहता है कि आप हिंदी क्यों बोलते हैं। मेरा हिंदी खास अच्छा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ असामीज़ में प्रचार करने वाला व्यक्ति हूँ, असामीज़ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत सा भाई बहन लोग अरुणाचल में भी है, नागालैंड में भी है, नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग जगह में भी जो भाई बहन लोग हैं जो हिंदी समझ में नहीं आता उन लोग को। जैसे मेघालय में है, तुरा में मेरे बहन भाई लोग हैं, उन लोग को हिंदी समझ में नहीं, असमी समझ में नहीं आता, उन लोग को हिंदी और इंग्लिश उन लोग समझ में आते। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी से बोलूँ, और असमीज़ जो है भाई बहन उनके लिए मैं थोड़ा बहुत असमीज़ में बोलता हूँ ताकि वो लोग असमीज़ भी समझ सके, हिंदी भी समझ सके। इसीलिए मेरा हिंदी खास अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको समझे, उसका मीनिंग को समझे और क्या बोलना चाहता हूँ आप उसको जानें। In the Bible we have found 16 different blessed classes, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके जैसे हम लोग भाग करते हैं। हम लोग किसी चीज़ को हम लोग A, B, C, D और 1, 2, 3, 4 करके हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। बाइबल में भी ब्लेसेड जो है, इस ब्लेसेड को 16 टाइम्स पूरा बाइबल में हम लोग को मिलता है। 16 बार आशीषित या धन्य कहने का जो मीनिंग को हम लोग देखते हैं अलग अलग किस्म में। तो आज आपको मैं ये इसके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि क्या ही धन्य है वो लोग। क्या आप भी वो क्या ही धन्य में आते हैं? आर यू काउंटेड इन ए ब्लेसेड पर्सन और आर यू काउंटेड इन अनगॉडली अनराइजियस पर्सन? क्या आप एक धार्मिक व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति या धन्य व्यक्ति में काउंटिंग में आते हैं, या आप एक अधार्मिक व्यक्ति, प्रभु को नहीं मानने वाला व्यक्ति में आप काउंटिंग में आते हैं? तो आमी आज आलोचना करिम जे हेई भागসমূह 16টা বেলেগ বেলেগ ভাগ আমাৰ ওচৰত আছে। আমি সেই ভাগসমূহ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম যাতে আমি গম পাওঁ যে মই কোনটো জেগাত আছোঁ। মোক মানুহে দেখিলে কয় নেকি যে ধন্য হয়? এইটো বাইবেলত কোৱা নিচিনাকৈ যি মানুহে এই জ্যেষ্ঠবোৰৰ আলোচনাত নচলে, পাপীবোৰৰ পথত থিয় নহয় আৰু নিন্দকবোৰৰ আসনত নবহে, কিন্তু যিহুৱাৰ ব্যৱস্থাত সন্তুষ্ট হয় আৰু দিনে ৰাতিয়ে তেওঁৰ ব্যৱস্থা ধ্যান কৰে, সেই মানুহেই ধন্য। আজি আপোনাকো সেই ধন্য বুলি কয় নে নকয় কোনোবাই? বা আপোনাক ঈশ্বৰে ধন্য বুলি কয় নে নকয়? বা আপুনি ঈশ্বৰৰ কাৰণে ধন্য হৈছে নে নাই? আপুনি নিজেই এইকেইটা जिगिता मैं पॉइंट कम ताते आपने गम पाबो। जब हम लोग बीमार होते हैं या बीमार हम लोग को जो पकड़ लेते हैं तो हम लोग क्या करते? डॉक्टर हमें टेस्ट करने के लिए देते, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, MRI। और जब हम लोग ये टेस्ट को पूरा करते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स को देख के बोलते हैं आपका ऐसा कुछ खास बीमार नहीं है, आप सिर्फ इस मेडिसिन को खाओ, ये थोड़ा कमजोरी है आप में, आप इसको खाने से ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आई हैव डन ऑल द टेस्ट एंड ऑल द टेस्ट सेज दैट इट्स नेगेटिव, सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट माय लाइफ। तो हम लोग क्या होते हैं? हम लोग एश्योर हो जाते हैं कि मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये थोड़ा बहुत है, ये ठीक हो जाएगा। तो हम लोग जब ये कैटेगरी जो हम लोग अभी देखेंगे, जो अभी ब्लेसेड क्लासेस जो है हम लोग उसको देखेंगे, तो इसमें अगर हम इसमें पास होते जाएंगे, इसमें हम लोग सब पॉजिटिव आएगा, तो मेरा लिए एक चिंता का कारण नहीं है कि मैं भी परमेश्वर का कहने वाला एक धन्य व्यक्ति हूँ। आई एम ऑल्सो ए ब्लेसेड पर्सन। सो नंबर 1, लेट मी से सम नंबर 1 and verse 1, Psalm number 106 and verse 3, and Isaiah 56 and verse 2. A person is called a blessed person who lives godly life. जो परमेश्वर का जो रास्ता में परमेश्वर दिखाने वाला रास्ता या परमेश्वर कहने वाला रास्ता या परमेश्वर जो रास्ता को निर्धारण करते हैं, परमेश्वर का अनुसार चलते हैं अपना जीवन को, वही व्यक्ति है ब्लेसेड पर्सन। आर यू ए ब्लेसेड पर्सन? आर यू वॉकिंग एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल और नॉट? दिस इज द फर्स्ट टेस्ट इन योर लाइफ। अपनी ईश्वৰৰ इच्छाৰ দ্বাৰা চলা ব্যক্তি নে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা নচলা ব্যক্তি, এইটো হৈছে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰথম এটা পৰীক্ষা।
এইটো পৰীক্ষাত আপুনি পজিটিভ, আপুনি পজিটিভ মানে পাছ কৰিব পৰা হ'ব লাগে। নহয় মই ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলা ব্যক্তি, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলা ব্যক্তি বুলি ক'ব কাৰণে গ'লে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঈশ্বৰে দিয়া ৰাস্তাত চলিবৰ কাৰণে লাগিব। আৰু ঈশ্বৰে দিয়া ৰাস্তাসমূহ আমাক বাইবেলত আমি পঢ়িব পালে এটা এটাকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনেকৈ ঠেক দুৱাৰেদি সোমোৱা, ধন লোভে সকলো মন্দৰ মূল, বেবিচাৰৰ পৰা পলোৱা, খং সামৰা, নিন্দা নকৰিবা। আমাক যি 10 আজ্ঞা দিছে, এই 10 আজ্ঞা যেতিয়া আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ বা 10 আজ্ঞা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই 10 আজ্ঞাৰ ভিতৰতে আমি গম পাম যে আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলা ব্যক্তি হয় নে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলা ব্যক্তি নহয়। सो आपको देखना है कि आप परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चल रहे हो या नहीं। अब लूक चैप्टर में देखिएगा, उसमें एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी। जब उसका हस्बैंड, वो लोग शादी किया और 7 साल वो आत्मा हस्बैंड का साथ रहा। उसके बाद जो हस्बैंड का देहांत हो गया तो वो औरत कहाँ चली गई? वो टेम्पल और मंदिर में चली गई। और बाइबल कहती है 40 इयर्स से भी ज़्यादा उम्र और ज़्यादा समय उसने मंदिर में उसने प्रार्थना फास्टिंग में बिताया। और जब यीशु मसीह उस समय सैंक्टिफिकेशन करने के लिए उसको जो सर्कमसिजन सुन्नत करने के लिए लेके आया, उसने यीशु मसीह को देखा। बाइबल कहती है कि वो औरत 40 इयर्स से भी ज़्यादा समय वो मंदिर में रह के प्रार्थना फास्टिंग में रहा और परमेश्वर का मंदिर को कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर का मंदिर में ही रहा और परमेश्वर का स्तुति किया। क्या आप आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जितना भी विश्वासी लोग है, चाहे वो हस्बैंड रहने वाला हो या हस्बैंड नहीं रहने वाले हो, क्या आप हमेशा परमेश्वर का रास्ता में चलते हैं? आप परमेश्वर में रहते हैं या आप इधर उधर भटक जाते हैं? सही समय में आप परमेश्वर का कई समय में आप परमेश्वर का साथ में रहते हैं या कई समय आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो बाइबल कहते हैं यू आर नॉट ए ब्लेस्ड पर्सन, आप धन्य व्यक्ति नहीं है। धन्य का मतलब मैं आपको कह के आया हूं, ब्लेस का मतलब कह के आया, सैंक्टिफाई किया। परमेश्वर ने आपको आशीषित करके उसका जो उसने प्रोनाउंस किया, यू आर होली, आपको प्रोनाउंस कर दिया, मतलब ब्लेस किया। ये मेरे लिए होली है, मेरे लिए पवित्र है, मेरा व्यक्ति है, मेरा पर्सन है, मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है। परमेश्वर ने सैंक्टिफाई किया, ब्लेस किया, तो आपको उसी में है आपको चलना है। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप परमेश्वर का धन्य व्यक्ति नहीं है। Psalm number 2 verse 12, Psalm number 40 verse 4 में लिखा है, put their trust in God. A blessed person always put his or her faith in God. ধন্য ব্যক্তি যিজন হয়, যাক ধন্য বোলা কোৱা হৈছে, তেওঁ সদায় নিজৰ ভৰসা কাৰ ওপৰত ৰাখে? তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওপৰতেই ৰাখে। ঈশ্বৰৰ বাহিৰে তেওঁ কাকো ভৰসা নকৰে, ঈশ্বৰকে তেওঁ ভৰসা ৰাখে। আমি যে সকলোৱে গাওঁ, আমি জয় কৰিম, আমি জয় কৰিম, আমি জয় কৰিম এদিন, এই গীতটো আপোনালোকে আমি সকলোৱে গাওঁ, কেতিয়াবা চাৰ্চতো গাওঁ বা কেতিয়াবা আমি কোনোবা অনুষ্ঠানতো গাওঁ। আমি জয় কৰিম, আমি জয় কৰিম, আমি জয় কৰিম এদিন, ও মনত হয় বিশ্বাস, পুৰা হয় বিশ্বাস, আমি জয় কৰিম এদিন। এই গানটো যেতিয়া গাওঁ, মইতো গীত কিতাপত বিচাৰি পোৱা নাই। এই গানটো কেতিয়া লিখা হৈছিলে? প্ৰথম গানটো হৈছিলে I will win বুলি প্ৰথম বাক্যটো আছিলে, বা প্ৰথম যিটো আছিলে, যেতিয়া গানটো লিখিছিলে যে we shall overcome, I will overcome বুলি আছিলে। 1900ত এই গীতটো লিখিছিলে I will overcome। কিন্তু 1959ত যেতিয়া আমেৰিকাত চিভিল ৰাইট মুভমেণ্ট হ'ল, তেতিয়া এই গীতটো তেওঁলোকে we shall overcome লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। I will overcome যিটো গীত আছিলে তাক তেওঁলোকে সলনি কৰি we shall overcome বুলি তেওঁলোকে কি কৰিলে? এইটো সলনি কৰিলে, আমি জয় কৰিম। তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি চিভিল ৱাৰটো যুঁজিছিলে।
ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলে আজি আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে নে মোৰ এই পৰিস্থিতিৰ বা মই ওলাব পাৰিম বা এই পৰিস্থিতিৰ পৰা মই পাৰ হৈ যাব পাৰিম আপুনি সেই বিশ্বাসটো ৰাখে নে কি आपका विश्वास है कि मैं इस जो मेरा परिस्थिति है जो मेरा सर्कमस्टेंस है मैं क्या इसमें निकल पाऊंगा इससे मैं उभर पाऊंगा परमेश्वर का ऊपर मेरा विश्वास है कि वो मुझे निकाल के लेके चलेंगे मुझे निकाल के लेके जाएंगे तो आप अगर उसका ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं आधा नहीं पूरा विश्वास कर रखते हैं तो आप एक धन्य व्यक्ति है बाइबल में लिखते हैं ब्लेसेड इज अ पर्सन वो क्या है धन्य व्यक्ति है हु पुट देयर ट्रस्ट इन गॉड उनका पूरा विश्वास परमेश्वर का ऊपर ही रखना मेरा परमेश्वर वो सकेगा वो मुझे उठाएगा वो मुझे लेके चलेगा वो मुझे आगे बढ़ाएगा मैं ऐसा नहीं रहूंगा मैं ऐसा नहीं हो मेरा लाइफ हमेशा ऐसा नहीं चलेगा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे उठाएगा और मुझे चढ़ाएगा मैं लेके जाएगा तो यही है धन्य व्यक्ति आप एक धन्य व्यक्ति बनने के लिए आपका विश्वास परमेश्वर का ऊपर हमेशा होना है नंबर 3 में सम नंबर 32 वर्स 1 भजन संहिता 32 का 1 में whose sins are forgiven जिसका पाप माफ किया गया है सम नंबर 32 वर्स 1 जिसका पाप माफ किया गया है अगर मैं एक कोर्ट में खड़ा होके अगर एक एडवोकेट बन के अगर इस वचन को मैंने अगर बोलने का मौका मिलता था तो मैं कहता था माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड इस पॉइंट को नोट किया जाए आज मैं आपको कह रहा हूं मैं आज परमेश्वर का एक दास होने का नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पॉइंट को आप नोट कीजिए साम नंबर 32 वर्स 1 इसको पॉइंट कीजिए नोट कीजिए उसमें लिखा है whose sins are forgiven जिसका पाप माफ किया गया है Blessed is he whose transgressions are forgiven आपका पाप को माफ किया गया है आपका पाप को आप कैसे माफी पाया आपका पाप से आप कैसे छुटकारा पाया आपका पाप से आप कैसे छुटकारा पाया क्या आप कभी सोचे हैं जो विश्वासी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते वो कहेगा हाँ मैं पापी था मैं पाप किया है और अनेक गुनाह किया है लेकिन यीशु का लहू ने मुझे साफ किया है हाँ ये बाइबल कहती है अगर आप यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 22 को पढ़े उसमें लिखा है आप जितना भी नहाए पानी से या आप जितना भी आप क्या करें साबुन लगाए या राख लगाए आपका पाप हमेशा क्या होगा पाप होते रहेगा यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 22 लिखा है ऑल्दो यू वॉश योरसेल्फ विथ सोडा जिमाने सोडा दी निजके निजे धुआ एंड यूज एन अबंडेंस ऑफ सोप जिमाने साबुन लगाए फेनाइल लुआ देन stain of your guilt is still before me কিন্তু পাপৰ দাগটো সদায় মোৰ চকুৰ আগত থাকিব declares the sovereign lord এইটো সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰে ইয়াক ঘোষণা কৰিছে যিমানে আমি গা ধুলেও যিমানে আমি সাবন লগালেও যিমানে আমি এটো সোডা লগালেও আমাৰ পাপৰ দাগটো সদায় পাপ হিচাপে আমাৰ আগত থাকিব আমি যিমানে স্যাক্রিফাইস কৰিলো যিমানে বলিবিধান দিলো বাইবেলে কৈছে যে হিব্ৰু চ্যাপ্টাৰ 10 ভাৰ্স 4 লিখা আছে যে এইবিলাকে কেতিয়াও তোমাৰ পাপটো ধুব নোৱাৰে আপোনাৰ পাপটো ধুবৰ কাৰণে আপুনি কি ব্যৱস্থা কৰিলে আপোনাৰ পাপটো আপোনাৰ ক্ষমা পাবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিলে আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক কি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আপোনাৰ পাপ ক্ষমা হল কি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি কি কাৰ্যৰ যোগেদি আপোনাৰ পাপটো মাফ কৰি দিয়া গল গুণ আপোনাৰ অপৰাধটো ধুই দিয়া গল আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক কিয়নো আমাক কৈছে যিজনৰ পাপ ক্ষমা কৰা হল সেইজন ধন্য আপোনাৰ পাপটো ক্ষমা কৰা হল নে আপোনাৰ পাপটো এতিয়া পাপ হিচাপে আপোনাৰ গাত লাগি আছে যদি এতিয়া আপোনাৰ পাপটো আপোনাৰ গাত লাগি আছে তেতিয়ালে আপুনি এজন ধন্য ব্যক্তি নহয় you are not a blessed person if the stains of your sin is still there আপোনাৰ পাপটো এতিয়াও লাগি আছে তেতিয়ালে আপুনি পাপী বা আপুনি ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আপুনি অপৰাধী আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিক ঈশ্বৰে ধন্য বুলি কেনেকৈ ক'ব
ঈশ্বৰে সেইজন ব্যক্তি ধন্য বুলি ক'ব যাৰ পাপটো ক্ষমা কৰা হ'ল আপুনি পাপ ক্ষমা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে কিন্তু কোনো উপায় নাই পৃথিৱীত গা ধুলেও বা যিমান যি কৰিলেও আমাৰ পাপটো নাযায় কিন্তু বাইবেলত লিখা আছে ইব্ৰী 10 অধ্যায় 10 পদ হিব্ৰু চেপ্টাৰ 10 ভাৰ্ছ 10 লিখা আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজৰ দ্বাৰা আমি পাপৰ পৰা মুক্তি পাওঁ প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এই কাৰণে পইণ্ট টু বি নোটেড বুলি মই কোৱাটো অৰ্থটো এইটো হৈছে এই পইণ্টটো আমি অধিকতৰ আমি নোট কৰি ৰাখিবলগীয়া যে মই মোৰ পাপৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে মই যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজ মোৰ গাত কি কৰিব লাগিব আমি লাগিব বা ধুবলৈ দিব লাগিব বা মই ধুব লাগিব ধুলানে তেওঁ তেজত তোমাৰ সেন্দুৰীয়া পাপক তোমাৰ বস্ত্ৰ নিচেকা বগানে হৈছানে যীশুৰ তেজত নিৰ্মল পেলাই দি পাপ চেকা লগা যি বস্ত্ৰ হোৱাহে যীশুৰ তেজত নিৰ্মল বয়াছে এক ভুমুক তোমাৰ কাৰণে তাতে ধুই হোৱা এতিয়া নিৰ্মল ধুলানে তেওঁৰ তেজত তোমাৰ সেন্দুৰীয়া পাপক তোমাৰ বস্ত্ৰ নিচেকা বগানে হৈছানে যীশুৰ তেজত নিৰ্মল अगर आपका पाप अभी भी आपको मालूम चल रहा है कि मैं अभी भी पाप में दबा हुआ हूँ अभी भी मेरा गलती मेरा अपराध मेरा ऊपर है आप यीशु का पास आइए और माफ़ी मांगिए और यीशु कहता है आप आज आपको कहेगा अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह आपको कहेगा यू आर ए ब्लेसेड पर्सन आप एक धन्य व्यक्ति है Psalm number 32 verse 2 में लिखा है the person who is free from the charges of sin পাপৰ যিটো চাৰ্জ বা যিটো তাক এইটো পাপৰ পৰা তাক মুক্তি দিয়া গ'ল যে পাপৰ চাৰ্জ লাগিছে যেনেকৈ কোনোবা কেতিয়াবা মিছাকৈ এজনে অপৰাধী বুলি চাৰ্জ কৰা যায় ভাৰ্ছ 2 কৈছে যিজনৰ পাপৰ যিটো তাক তেওঁ পাপ আছিলে পাপৰ পৰা তেওঁ পাপৰ যিটো তেওঁ চাৰ্জ কৰা গৈছিলে হেতুৰ পৰা তেওঁক মুক্তি দিয়া গ'ল অপৰাধী বুলি দুষ্ট আত্মাই শয়তানে সদায় আমাক কি কৰে তুমি অপৰাধী তুমি অপৰাধ কৰিলা তুমি পাপ কৰিলা তুমি হত্যা কৰিলা তুমি মিছা কথা ক'লা তুমি বেবিচাৰ কৰিলা আমাৰ মনত শয়তানে খুচি থাকে আৰু এই খুচি থকা ফলস্বৰূপে বহুত মানুহে সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াবা তেওঁ কি কৰে বেলেগ বস্তুবিলাকৰ জাগতিক বস্তুবিলাকৰ সহায় লয় যিদৰে মদ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে ড্ৰাগছ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে বা আন বেয়া ৰাস্তাত যাবলৈ আৰম্ভ কৰে কি কাৰণে পাপে তেওঁ খুচি থাকে আৰু তেওঁ শান্তি নাপায় তেওঁ শুব নোৱাৰে তেওঁৰ টোপনি নাহে তেওঁ ভালদৰে ভাৱনা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মদ খোৱা বা এইটো ড্ৰাগছ খোৱা তেওঁ গুচি যায় কিন্তু যাৰ এই চাৰ্জ পাপৰ চাৰ্জ যিটো আছিলে ভাৰ দিয়া গৈছিলে তাৰ পৰা মুক্তি দিয়া গ'ল নাই তোমাৰ এই পাপটো আজিৰ পৰা মই গুচাই দিলো you are no more a sinner from now you are free from all the charges যিজনে কোৱা হ'ব তোমাক সকলো যিটো পাপৰ চাৰ্জ দিয়া গৈছিলে তুমি পাপী হয় বুলি তোমাক অপৰাধী বুলি দুখী সজোৱা হৈছিলে আজিৰ পৰা তোমাক সেই দুখৰ পৰা মই মুক্তি দিলো যদি আপোনাক কোৱা হ'ব সেইজন ব্যক্তি বাইবেলে কৈছে এজন धन्य व्यक्ति क्या आपने किया हुआ गुनाह से आप किया हुआ आपका जो अपराध से क्या आप दोष मुक्त हुए हैं क्या आप दोष मुक्त होके आप प्रभु का पास अभी प्रार्थना करते हैं अगर आप दोष मुक्त हैं अगर आप इस समय हर एक गुनाह से आजाद हो चुके हैं प्रभु ने आपको कहा है यू आर फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस ऑफ सिन तो आप एक धन्य व्यक्ति है Number 5, Psalm number 41 verse 1, who helps the poor
जो गरीब को मदद करता है। आप मेरा YouTube चैनल अमेजिंग ग्रेस ऑनलाइन में जाइए, अमेजिंग ग्रेस ऑनलाइन में आप सर्च कीजिए, वहां आपको मिलेगा कि वो व्यक्ति जिसका बारे में, जो गरीब को मदद करने वाला, जो गरीब, कौन सा गरीब, मैं उसको दोबारा आपसे बोलना नहीं चाहता हूं, आप मेरा YouTube चैनल में देखिएगा। Who helps the poor, जो गरीब को मदद करता है, दुनिया का गरीब, जो भी गरीब है उन लोगों को मदद करता है, और जो प्रभु के लिए अपने आप को गरीब किया है, अर्थात जो व्यक्ति लोग प्रभु का काम के लिए ना अपना घर के लिए चिंता किया, ना परिवार के लिए चिंता किया, ना किया, ना पहनने के लिए चिंता किया, लेकिन हर समय प्रभु का वचन, जो अनरिच, जिसको प्रभु का वचन नहीं मिला है, ऐसा व्यक्ति लोगों को देने के लिए हमेशा जो चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति को मदद करने वाला व्यक्ति, गरीब जो खाना नहीं मिल रहा है, जो जिसको जो अभी जो कपड़ा नहीं मिल रहा है, जो ठंड में जकड़ रहा है, ऐसा व्यक्ति को मदद करने वाला व्यक्ति अगर आप है तो बाइबल कहती है यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन, आप एक धन्य व्यक्ति है। क्या आप एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्योंकि धन्य व्यक्ति का मतलब हो गया आपको सेपरेट किया गया है, आपको आशीष किया गया है, आपको एनॉइंट किया गया है, आपका जीवन में अलग से परमेश्वर खुशियां भरने के लिए जा रहा है, आपको पवित्रकृत किया गया है। यू आर बिकमिंग ए होली पर्सन। गॉड हैज टर्न्ड यू टू यू ए होली पर्सन, फ्रॉम अनहोली टू होली, फ्रॉम अनराइजियस टू राइजियस। 6 Psalm number 65 verse 4, जिसका साथ प्रभु रहता है, with whom God dwells। मैं इस वचन को पढ़ता हूं, बाइबल तो हमेशा पढ़ता हूं, लेकिन Psalm number 65 verse 4 जब पढ़ा, blessed are those you choose and bring near to live in your courts, we are filled with the good things of your house, of your holy temple। जिसका साथ या जिसका पास प्रभु रहता है, या प्रभु का पास जिस व्यक्ति को रहने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ब्लेसेड वन। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर, कितना अच्छा बात है। प्रभु चुन लेता है दुनिया में से, प्रभु चुन लेता है दुनिया में से, और उसको प्रभु का साथ रहने के लिए वो चुना जाता है, और प्रभु भी उसका साथ में रहता है। कितना अच्छा बात है। वो व्यक्ति कितना धन्य होगा। मैं आज से कम 4-5 साल पहले मैंने सुना था, टीवी में देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था, जितना भी इजराइल लोग, पुराना जितना भी इजराइल लोग स्कैटर्ड हो गया, जहां तहां चला गया, और स्कैटर्ड होने वाला इजराइल लोग को डीएनए टेस्ट कर करके उनको अपना देश इजराइल में लेके जा रहा है। इजराइल लोग जो स्कैटर्ड हो गया, जहां तहां चला गया था, उसको डीएनए टेस्ट करके अपना देश इजराइल में लेके चला गया। तो आप देखिएगा, कोई भी व्यक्ति मणिपुर से भी या मिजोरम से भी बहुत से व्यक्ति लोग को लेके गया, कितना अच्छा होगा कि अपना उन लोग को, कितना भाग्यशाली व्यक्ति है कि वो लोग लेके गया उन लोग को। डीएनए टेस्ट में पता चला कि ये इजराइल है, तो उसको अपना देश बुला के लेके गया, जगह दिया बैठने के लिए। परमेश्वर आपको चुना दुनिया में। अगर आज अभी तक प्रभु आपको नहीं चुना है, तो आप प्रभु आपको चुने, ऐसे आप काम कीजिए, आप ऐसे विश्वास कीजिए, आप ऐसे बनिए कि प्रभु आपको चुने। दुनिया हजार लाख करोड़ का बीच में आपको चुने। किस लिए चुने? ताकि प्रभु आपका साथ रह सके और आप भी प्रभु का साथ रह सके। अगर प्रभु आपका साथ रहे या आप प्रभु का साथ में रहे, तो वो व्यक्ति कितना धन्य होगा, कितना आनंद होगा, कितना वो खुशी होगा कि प्रभु उसका साथ में रहता है और वो प्रभु का साथ में रहता है। Psalm number 84 verse 4, Those who dwells in God's house, वो व्यक्ति लोग जो परमेश्वर का मंदिर में या परमेश्वर का घर में रहते हैं। जैसे दो अलग बात है। कोई व्यक्ति प्रभु अपना साथ, अपना पास रहने के लिए बुलाता है, और कोई व्यक्ति को प्रभु ने अपना घर में रहने के लिए बुलाता है। वो भी धन्य है। प्रभु का पास रहने वाला व्यक्ति, बाइबल में रेवलेशन में लिखा है 1000 years राज करेगा। वो कैसा व्यक्ति है? वो प्रभु का पीछे पीछे जाएगा। प्रभु जब जाएगा, उसका पीछे पीछे एंजल का जैसे जाएगा। वो प्रभु का साथ रहने वाला व्यक्ति, प्रभु उन लोग का साथ में है और वो प्रभु का साथ में है। लेकिन इसमें कहता है जो प्रभु का घर में रहने के लिए, तो dwell in the temple of God, परमेश्वर का घर में, परमेश्वर का मंदिर में रहने के लिए बुलाए जाते हैं, वो व्यक्ति धन्य है। आज आपका मन खोलना चाहिए, आपका मन में ये विचार आना चाहिए, प्रभु मैं कहां में हूं,
प्रभु मैं कहाँ हूँ, प्रभु मैं धन्य व्यक्ति हूँ या नहीं, आपका मन में विचार आना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि मैं ऐसा एक जो अभी मैं क्लास में दिखा रहा हूँ, अभी इसमें मैं इस श्रेणी में नहीं गिरा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए ना मैं धन्य व्यक्ति बनूं, प्रभु कहे मुझे धन्य, आप ऐसा व्यक्ति बने। Psalm number 84 verse 5 में लिखा है, those who made God their strength, वो व्यक्ति लोग धन्य है जो प्रभु को अपना ताकत मानता है। Praise the Lord। प्रभु को अपना ताकत, वो घोड़े का ऊपर विश्वास नहीं रखता, वो कोई हथियार का ऊपर विश्वास नहीं रखता, वो अपना भुजा, अपना जो बाहु का ताकत का ऊपर विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखता है। जी व्यक्ति होकले ईश्वरक निजर शक्ति बनाए, ईश्वरक निजर स्ट्रेंथ ताकत बनाए, हे व्यक्ति होकल धन्य। কোনোবাই আপোনাক অপকাৰ কৰিছে, আপুনি তেওঁৰ লগত গৈ অপকাৰ কৰিব। কোনোবাই আপোনাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে, যদি তেওঁ হেলগুটি দি মাৰিছে, আপুনি সেই পাথৰ দি মাৰি কি ইটা দি মাৰিব, এইটো নহয়। আপুনি ঈশ্বৰৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি সোধাই দিয়ে, ঈশ্বৰেহে যুঁজিব। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে বেটেল বিলংছ টু দ্য লৰ্ড। জিহুচাপতক ঈশ্বৰে কৈছিলে, যেতিয়া জিহুচাপতে ঈশ্বৰক বিচাৰিলে যে অ প্ৰভু ঈশ্বৰ, আজি মোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে ইমান শক্তিশালী পৰাক্ৰমী ৰজাসকল ওলাই আহিছে, মই কি কৰিম? তেওঁ ফাষ্টিং ঘোষণা কৰিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁ ফাষ্টিং ঘোষণা কৰিলে, তেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁ উত্তৰ দিলে, তুমি ভয় নকৰিবা জিহুচাপত, এই যুদ্ধ তোমাৰ নহয়, এই যুদ্ধ ঈশ্বৰৰ হয়। বেটেল belongs to the Lord। কিয়নো জিহুচাপতে ঈশ্বৰক নিজৰ লগত ৰাখি যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় বিচাৰিলে, আৰু ঈশ্বৰে ক'লে এই যুদ্ধ তোমাৰ নহয়, এই যুদ্ধ মোৰ হয়। আজি আপুনি ঈশ্বৰক শক্তি মানেনে? আজি কোনোবাই আপোনাৰ সীমাটো যদি অকমান বেকা কৰি আনে, আপুনি তেওঁৰ লগত মাৰ পিট কাজিয়া কৰিবলৈ যায় নে আপুনি ঈশ্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে আপুনি সেই মানুহজনৰ ব্যক্তিৰ লগত কাজিয়া কৰি তেওঁৰ লগত মাৰপিট কৰি তেজ বুৱাই দিয়ে, নে আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে প্ৰভু তেওঁৰ মন সলনি কৰা? কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক বেয়াকে গালি পাৰে বা বেয়া কথা কয়, আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ লগত আপুনি ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে, প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে ভাৱনা কৰি থাকে, নে আপুনি ভাৱনা কৰে প্ৰভু আপুনি তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়ক, তেওঁৰ মনটো শুদ্ধ হওক? যদি আপুনি ঈশ্বৰক নিজৰ শক্তি বুলি ভাৱনা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে বাইবেলে কৈছে আপুনি এজন ধন্য ব্যক্তি। Psalm 89 verse 15 লিখা আছে, those who knows how to worship God, praise the Lord, this point should be noted। এই পইণ্টটো আপুনি লিখি ল'ব লাগে যে সেইজন ব্যক্তি ধন্য যিজনে ঈশ্বৰক কেনেকৈ ৱৰ্শ্বিপ কৰিব লাগে তাক জানে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। দাউদে জানিছিলে ঈশ্বৰক কেনেকৈ ৱৰ্শ্বিপ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে গোটেই গীতমালাটোত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, দাউদে লিখা গীতবিলাকত আমি ঈশ্বৰৰ ৱৰ্শ্বিপৰ বিষয়ে দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু দাউদে ঈশ্বৰক ৱৰ্শ্বিপ কৰিব জনাৰ কাৰণে এজন ভেড়া পোৱালি চৰোৱা ভেড়াৰখীয়া এজনক ঈশ্বৰে উঠাই ইজৰাইলৰ ৰজা বনাইছিলে। কি কাৰণে? ডেভিড knows, he knew how to worship God। If you know how to worship God, then God, the Bible says you are a blessed person। अगर आप जानते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर को वर्शिप करूं, मैं परमेश्वर को कैसे वर्शिप में, आराधना में उसको स्तुति दूं और आराधना में उसको खुशियां मतलब परमेश्वर को आनंदित करूं, तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं। प्रार्थना को रिचुअल मत बनाइए, प्रार्थना को रिचुअल मत बनाइए। मुझे प्रार्थना करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये आप रिचुअल मत बनाइए। मुझे गाना है क्योंकि चर्च में गाता है इसलिए मैं गा रहा हूं, आप ऐसे मत बनाइए, क्योंकि इसके द्वारा आप कभी भी धन्य व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। प्रार्थना आपका दिल से, आपका हृदय से होता है। वर्शिप आपका दिल से और हृदय से होता है, आपका दिमाग से करने वाला तो नहीं होता है, क्योंकि दिमाग से सोच के आप प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना प्रभु का पास नहीं जाता है। लेकिन दिल से, आपका दिल में जो है, आप हन्ना का बारे में देखिए, जो हन्ना जो इल्काना का फर्स्ट शमूएल का माँ, उसने मंदिर में जाके जो खंबा में उसमें लीन होके उसने सिर्फ मुंह को हिल रहा था। किस लिए? उसका मन का दुख को वो प्रभु का आगे प्रकट कर रहा था। मन का दुख दिल का दुख है वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर से व्यक्त कर रहा था। और जब उसने परमेश्वर का व्यक्त करा, परमेश्वर सुना, और दूसरा साल नेक्स्ट ईयर उसको एक बच्चा मिला। इतना साल से उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय वो जब मन का दुख को परमेश्वर का आगे व्यक्त किया, प्रकाश किया, तो प्रभु उसको सुना। आपका दिल से प्रार्थना होना चाहिए, आपका दिल से वर्शिप होना चाहिए, आप दिल से परमेश्वर के लिए धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, ना कि मुंह से या दिमाग से। Psalm number 94 verse 12,
whom God instruct or direct. वो व्यक्ति धन्य है जिसको परमेश्वर ने निर्देश देता है, जिसको परमेश्वर ने डायरेक्शन देता है, चल इस रास्ता में तू चल, नहीं इधर से तू मत जा, नहीं तुम ऐसा कर। मैं एक वचन को हमेशा आपको कहना चाहता, मैं प्रचार में बोलता हूँ, मैं এটা কথা সদায় কওঁ। এবাৰ বেনিহিনে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ বেনিহিন পাষ্টৰ বেনিহিনে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন দেশলৈ গ'ল, আৰু সেইখন দেশত তেওঁ নিজৰ ভনীয়েকক বিয়া দিছে। আৰু যেতিয়া ভনীয়েকে গম পালে যে তেওঁৰ ককায়েক আহিছে, আৰু তেওঁ ক'লে আজি তুমি দুপৰীয়া আহাৰ মোৰ ঘৰত খাব লাগে। আৰু যেতিয়া বেনিহিনে ক'লে ঠিক আছে মই যাম, আৰু বেনিহিনে গৈ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰা সময়তে যেতিয়াই খাবলৈ লৈছে, পবিত্ৰ আত্মাই বেনিহিনক ক'লে তোমাৰ হোটেলৰ ৰুমলৈ যোৱা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰা। বেনিহিনে পবিত্ৰ আত্মাক ক'লে মোৰ ভনীৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু মই এই আহাৰটো খাওঁ, তাৰপিছত যাওঁ। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই ক'লে যোৱা তোমাৰ হোটেলত গৈ তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰা। বেনিহিনে পবিত্ৰ আত্মাৰ আৱাজটো অলপ দেৰিৰ কাৰণে নুশুনি তেওঁ নিজে ভনীয়েকৰ ঘৰত আহাৰ খালে, অলপ দেৰি কথা পাতিলে, তাৰ পৰা হোটেলত গ'ল, প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। সন্ধিয়া সেইখিনি সময়ত বেনিহিনৰ মিটিঙত বেছি মানুহ জমা নহৈছিলে। সেইদিনাখন বহুত মানুহ জমা হ'ল, গোটেই ষ্টেডিয়াম এইটো ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম ভৰ্তি হৈ গ'ল। আৰু বেনিহিনে ভাবিলে আজি পবিত্ৰ আত্মাই বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব। বেনিহিনে শিক্ষা দিলে, আৰু যেতিয়া অভিষেকৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাক মাতিলে, পবিত্ৰ আত্মাই উত্তৰ নিদিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত একো অভিষেক নহ'ল। আচৰিত কথা। তেতিয়া বেনিহিনে কিতাপত লিখিছে, দ্য এনইণ্টিং গুড মৰ্ণিং হলি স্পিৰিটত তেওঁ লিখিছে যে মই পবিত্ৰ আত্মাৰ আৱাজটো নুশুনা কাৰণে, ঈশ্বৰে যিটো মোক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে, ডাইৰেকশ্যন দিলে, মই নুশুনা কাৰণে এইখিনি সময়ত সেই সন্ধিয়া পবিত্ৰ আত্মাই মোৰ জীৱনত কাম নকৰিলে। আজি যদি ঈশ্বৰে আপোনাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে, ঈশ্বৰে যদি আপোনাক এই ৰাস্তা দি চলা, ঈশ্বৰে যদি কয় যে এইটো বাট হয় তুমি চলা, তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি শুনিছে আৰু তেওঁৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন ধন্য ব্যক্তি। आप एक धन्य व्यक्ति है अगर परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, परमेश्वर आपको चलने का राह दिखा रहा है। आप तुम ऐसे चलो, तुम ये काम करो, तुम ऐसे उधर मत जाओ, तुम ऐसे मत खाओ। अगर तुम ऐसे परमेश्वर आपको सिखा रहा है तो परमेश्वर आपको क्या है, आप एक धन्य व्यक्ति है। परमेश्वर जिसको डायरेक्शन देता है, परमेश्वर जिसको इंस्ट्रक्शन देता है, वो व्यक्ति बहुत ही धन्य व्यक्ति है। Psalm number 112 verse 1, Psalm number 128 verse 1, who fears God, जो परमेश्वर को डरता है वो एक क्या है, वो धन्य व्यक्ति है। He is a blessed person। जो परमेश्वर को डरता है वो एक ब्लेसेड पर्सन है। क्या आपका अंदर में परमेश्वर का भय है? परमेश्वर का भय हम लोग सभी का अंदर में है, लेकिन वो भय कैसा है? मैं अगर ये गलती करेगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे ये करने से मैं परमेश्वर मुझे क्या बोलते हैं पनिशमेंट देगा। ये डर नहीं, ये तो अलग किस्म का डर है। डर इसी को कहा जाता है मेरा चाल चलन, मेरा हर एक चीज में परमेश्वर का आंख है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है परमेश्वर का जो आंख है वो आग का जैसा है, वो आग का जैसा आंख हमेशा मुझे देख रहा है। इसीलिए मेरा हर एक चीज को क्या है, मैं कंट्रोल करना है कि मैं घर का अंदर में हूं तब भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं घर का बाहर हूं तब भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूं तब भी मुझे परमेश्वर देख रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूं परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसलिए मुझे पाप से हमेशा दूर रहना है। यही है परमेश्वर के लिए भय, फियर ऑफ द लॉर्ड। और परमेश्वर का आत्मा भी है, परमेश्वर का जो भय मानने वाला आत्मा ये भी है। आप परमेश्वर को बोलिए प्रभु आपका जो भय, आपको भय मानने वाला, आपको डरने वाला आत्मा मुझे दीजिए प्रभु। आपनार भय जितो आछे, आपनार भय विषय शिकाई दिबर कारणे आत्मा मुख दान करक। जिहुवार आत्मा एटा पवित्र आत्मा, किन्तु हे पवित्र आत्मार 7টা भाग আছে। आपलोके हयतो जाने बहुते पवित्र आत्मारो 7টা भाग আছে। সেই 7টা ভাগৰ ভিতৰত এটা ভাগ হৈছে জিহুৱা বিষয়ক ভয় জন্মাওতা আত্মা। আপুনি জিহুৱা বিষয়ক ভয় জন্মাওতা আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ যদি আছে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আপোনাক কৈছে, বাইবেলে আপোনাক কৈছে ইউ আৰ এ ব্লেসড পারসন। Psalm 119 verse 1, those who lives blameless life, যিজনৰ নিষ্কলংক দাগ নথকা জীৱন যাৰ আছে, দাগ নথকা জীৱন। আজি আমাৰ বিশ্বাসী বিলাকৰ বহুতৰ জীৱনত দাগ আছে।
বিশ্বাসীবিলাকৰ বহুতৰ জীৱনত দাগ আছে কেতিয়াবা প্ৰচাৰকৰ দাগ আছে কেতিয়াবা পালকৰ দাগ আছে কেতিয়াবা বিশ্বাসীৰ দাগ আছে কিন্তু বাইবেলে কৈছে যি মানুহজনে ব্লেমলেस दाग नथका निष्कलंक लाइफ जो व्यक्ति का कोई भी उसका चरित्र में दाग नहीं है दाग नहीं रहने वाला व्यक्ति बाइबल कहती है वो एक धन्य व्यक्ति है लेकिन आज हम लोग दाग नहीं रहने वाला व्यक्ति को ढूंढने से बहुत तकलीफ से मिलता है क्योंकि आज पास्टर भी दाग रहने वाला होता है प्रचारक भी दाग रहने वाला होता है जो हम लोग का एसोसिएशन में काम करने वाला व्यक्ति लोग दाग रहने वाला होता है और हम लोग का विश्वासी लोग तो दाग रहता ही है बिलीवर्स लोग का अंदर में लेकिन बाइबल कहती है जो व्यक्ति ब्लेमलेस लाइफ जी रहा है जिसका कोई ब्लेम नहीं है कोई लोभ नहीं है कोई नहीं बोल सकता है कि ये व्यक्ति लोभी है कोई कह नहीं सकता ये व्यक्ति बहुत ग्रीडी है ये कोई व्यक्ति कोई नहीं कह सकता ये बहुत व्यभिचारी है इसका ये बहुत घमंडी है ये बहुत ऐसा है ये पास्टर तो बात ही नहीं करता ये प्रचारक कोई ये रुपया पैसा का पीछे चलता है ऐसा नहीं बोलने वाला ऐसा बहुत बोलते हैं आदमी लोग अगर ऐसा है तो आप ब्लेमलेस लाइफ नहीं बिता रहे आपको ब्लेमलेस लाइफ मतलब कोई दाग नहीं रहे वाला जीवन আপুনি যেতিয়া দাগ নথকা জীবন চলে তেতিয়া ঈশ্বৰে কৈছে যে এইটো জীবন ধন্য হয় Psalm 119 verse 2 who obeys God's word যিজনে ঈশ্বৰৰ word বা ঈশ্বৰৰ বাক্যটো obey পালন কৰে বাইবেল আমি পঢ়ো ৰাতিপুৱা গধূলি বহুতেই পঢ়ে কিন্তু তাক পালন নকৰে বাইবেলখন পঢ়া আৰু তাক পালন কৰাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে to read the word of God and obey the word of God it's a vast difference in between them বহুত ডাঙৰ এটো কি আছে পাৰ্থক্য আছে যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পঢ়ে খালি পঢ়ুতা হৈ আছে কিন্তু তাক পালন কৰতা হোৱা নাই তেতিয়ালে আপোনাক বাইবেলে ধন্য ব্যক্তি বুলি কোৱা নাই কিন্তু আপুনি যদি বাইবেলখন পঢ়িছে আৰু তাক আপুনি পালন কৰিছে তেতিয়াহলে ঈশ্বৰ বাইবেলে কৈছে আপুনি এজন ধন্য ব্যক্তি প্ৰভাৰ্ব 8:32 ত কৈছে হু ৱাক ইন উইজডম যিজনে জ্ঞানত চলে জ্ঞানেৰে চলে জ্ঞানৰ আন এটা নাম হৈছে যীশু অৰ্থাৎ জিজাস ক্ৰাইষ্ট যিজনৰ লগত জ্ঞান আছে যিজনে যীশুৰ লগত চলে যিজনে যীশুক আৰ্হি মানে যিজনে যীশুৰ লগত চলে সেইজন ব্যক্তি কি আছে সেইজন ব্যক্তি ধন্য প্ৰভাৰ্ব 8:34 ত কৈছে হু হিয়াৰ্স উইজডম যিজনে জ্ঞানক শুনে জ্ঞানটোক আপুনি কেনেকৈ শুনিব জ্ঞানটোক আপুনি শুনিব মানে হৈছে আপুনি যিজনে যীশুক শুনে যিজনে যীশুক শুনে যোহন 15 অধ্যায় 5 পদৰ পৰা 7 পদ পঢ়িলে আপোনালোকে দেখিব তাত লিখা আছে যিজনে মোৰ লগত লাগি থাকে সেইজনে অনেক ফল ধৰিব অৰ্থাৎ আপুনি যীশুৰ লগত লাগি থকা অৰ্থাৎ যীশুৰ জ্ঞানটো লোৱা অৰ্থাৎ উইজডমক আপুনি শুনা যেতিয়া আপুনি শুনিব উইজডমক তেতিয়াহলে আপোনাৰ জীৱনটো কি হ'ব ধন্য হ'ব জ্ঞানী হ'ব ফাইনালি আইজায়া চ্যাপ্টাৰ 30 ভাৰ্স 18 যেটো মই যোৱা সপ্তাহ প্ৰচাৰ কৰিছিলো আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এমেজিং গ্ৰেস অনলাইন তাত গলে এই শিক্ষাটো পাব ওয়েটিং আপন গড ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা যি ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰে a person who waits upon God ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা আপোনালোকে ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা আমি বহুত সময়ত নকৰো প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু তুমি এটো কৰিবা বিশ্বাস আছে তাৰ পিছতে আমি কি কৰো নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা আমি চলো কিন্তু ঈশ্বৰলৈ আমি বাট নাচাও ঈশ্বৰলৈ বাট চোৱা ব্যক্তিক বাইবেলে কৈছে হেজন ব্যক্তি ধন্য ব্যক্তি जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए राह दे बात जो होता है जो परमेश्वर के लिए वेट करता है बात जो होता है वो व्यक्ति धन्य है क्या आज मैंने कहा ये 16 कैटेगरी 16 क्लासेस का अंदर में आप है या आप नहीं है तो आप अगर नहीं है तो आज आपका मन में ये एक जला ये आपका मन में एक आग जलना चाहिए कि नहीं मैं भी एक धन्य व्यक्ति बनो क्योंकि धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु के लिए वेट करता है आप प्रभु के लिए वेट करें क्योंकि आप अगर प्रभु के लिए वेट होगा तो परमेश्वर सही समय में आप आएगा और मैथ्यू चैप्टर 25 में लिखा हुआ जो 10 कन्या में से 5 कन्या जो परमेश्वर के लिए वेट किया जो अपना तेल लिया और जो शादी घर में गया जाने के बाद वो वेट किया जब दुल्हा आया वो लोग दूल्हे का साथ चला गया उसी तरह जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बात जो हैगा वो सा व्यक्ति है उसको कहता है धन्य है उस समय प्रभु आएगा और इन लोगों को देखेगा ये मेरे लिए रुक रहा है तो प्रभु उसको लेके चला जाएगा अभी हम 3
और चीज देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में आगे जाएंगे। सम नंबर 1 वर्स, आप सम नंबर 1 में आप और 3 चीज आपको मिलेगा। जे उसमें लिखा है जो पाप का श्रेणी, सिंफुल क्लासेस, ये अभी हम लोग देखा। जो ब्लेसेड जो है उसका क्लास हम लोग देखा, उसका श्रेणी को हम लोग देखा, भाग को देखा। अभी हम 3 किस्म का पापमय जो श्रेणी, पापमय क्लासेस का बारे में हम देखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सिंफुल क्लासेस। नंबर 1 अनगॉडली। अनगॉडली जितो आमार অসমীয়া বাইবেলত লিখা আছে দুষ্ট। अनगॉडली অসমীয়া বাইবেলত কৈছে দুষ্ট। Who does not walk in the counsel of wicked। हिब्रू में अनगॉडली का मतलब जो वर्ड है राशा, RASA, राशा, जिसको ट्रांसलेशन में किया गया है मोरली रॉन्ग, एक्टिवली बैड, विकेड, अनजस्ट। যিবিলাক মানুহ একেবাৰে দুষ্ট, কাম কাজ সকলো সময়তে বেয়াই ভাৱনা কৰে, অধাৰ্মিক, এনেকুৱা ব্যক্তিক আনগডলি বা অসমীয়া বাইবেলত লিখা নিচিনাকৈ দুষ্ট বুলি কোৱা হৈছে। সাম নাম্বাৰ 1 ভাৰ্স 1 পঢ়িলে আপুনি এই শ্ৰেণীটো পাব। সাম নাম্বাৰ 3 ভাৰ্স 7ত লিখা আছে, সাম নাম্বাৰ 73 ভাৰ্স 12ত লিখা আছে আনগডলি। এইটো পাপ চৰিত্ৰ থকা যিটো আমি মানুহৰ বিষয়ে আমি চালো, পাপৰ ক্লাছটো, পাপৰ শ্ৰেণীটো, তাৰ ভিতৰত প্ৰথম শ্ৰেণীটো হৈছে আনগডলি। 3টা আমি দেখিবলৈ পালো। তাৰ ভিতৰত আনগডলি মানে হৈছে দুষ্ট। 2 নম্বৰ কৈছে সিনাৰ্ছ। সিনাৰ্ছ অসমীয়া বাইবেলত কৈছে পাপী, হিব্ৰুত কৈছে ছট্টা, CHATTA, ছট্টা, যাক ইংলিছত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা গৈছে ক্ৰিমিনেল। ক্ৰিমিনেল অপৰাধী, যিটো সিনাৰ্ছ বুলি কৈছে তাক অপৰাধী বুলি লৈ সলনি কৰা হৈছে। যেতিয়া হিব্ৰু ৱৰ্ড ছট্টা, তাক যেতিয়া ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা গৈছে সেইটো হৈছে ক্ৰিমিনেল, যাক সিনাৰ্ছ পাপী বুলি কোৱা হয়। গীতমালা 1 আৰু 5 পদ, গীতমালা 25, 28 পদ যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাত লিখা আছে। 3 নম্বৰটা স্কৰ্ণফুল, ইয়াতে ইংলিছ বাইবেলত লিখা আছে মোকাৰ্ছ, অসমীয়া বাইবেলত লিখা আছে নিন্দক, হিব্ৰুত লিখা আছে লউথ, LUWTS, লউথ। টু মেক মাউথ এট, মুখখন বেকা কৰা। যিবিলাক মানুহে কথা কওঁতে মুখ বেকা কৰা, ভেঙুচালি কৰা, ঠাট্টা কৰা, কথা কওঁতে ভাল কথা ক'লেও বেয়া কথা ক'লেও মুখ বেকা কৰা, এনেকুৱা ব্যক্তিক লিখা আছে নিন্দা কৰা। ভাল কথা ক'লেও নিন্দা, বেয়া কথা ক'লেও নিন্দা, খালি নিন্দা প্ৰকাশ কৰা, এনেকুৱা ব্যক্তিক হিব্ৰুত লাউথছ বুলি কোৱা হৈছে। স্কৰ্ণফুল বা ইংলিছ বাইবেলত কোৱা হৈছে মোকাৰ্ছ। সাম নাম্বাৰ 1 আৰু ভাৰ্স 1, সাম নাম্বাৰ 22 ভাৰ্স 7। ভাই ভনীসকল, বহুত কথা গীতমালা 1ৰ পৰা আমি পাওঁ। বহুত কথা আছে, বহুত কথা আমি জানিবলৈ পাওঁ। মাত্ৰ মই 1 পদটোহে এইখিনি সময়ত আলোচনা কৰিলোঁ। সাম নাম্বাৰ 1 ভাৰ্স 1টোৱে মই আপোনাক ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইটো যদি পঢ়ে, ধাৰ্মিকবিলাকে কি কৰে আৰু অধাৰ্মিকবিলাক কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। আহি থকা সময়বিলাকত ঈশ্বৰে যেতিয়া আমাক সুযোগ দিব তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম, আমি পঢ়িব পাৰিম। ধাৰ্মিকবিলাকৰ 7টা কথা লিখা আছে বাইবেলত। তাৰ ভিতৰত হৈছে সাম নাম্বাৰ 1 ভাৰ্স 2 লিখা আছে डिलाइट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। धार्मिक लोगों का बारे में लिखा है धार्मिक व्यक्ति हमेशा प्रभु का वचन में आनंदित होता है। मैं अपने आप को धार्मिक नहीं कहता हूँ, लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, ये बाइबल का वचन मुझे आनंद देता है, मुझे खुशी देता है, मैं आनंद पाता हूँ। और बाइबल का वचन को कैसे मैं समझूँ, बाइबल का वचन जो मैं समझ पाता हूँ दूसरों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा उसको ट्राई करता हूँ। इसीलिए बाइबल में लिखा है राइजियस मैन ही डिलाइट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का वचन में खुशी करता है, आनंदित होता है। Psalm number 1 verse 2 meditate on in it day and night। परमेश्वर का वचन, धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का वचन में दिन और रात उसमें ध्यान करता है। मैं एक मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ और जितना सुबह है जल्दी उठ के बाइबल को पढ़ता है, रात को जितना लेट होने से भी बाइबल को पढ़ के ही वो सोता है, चाहे 1 बजे और 2 बजे सोने से भी वो बाइबल को पढ़ के ही सोता है। वो अपना बाइबल, वो अलग अलग 4 किस्म का बाइबल है, एक ही बाइबल में 4 अलग अलग किस्म का ट्रांसलेशन है। जैसे अभी हमको मैं क्या चलिए NIV
न्यू किंग जेम्स, ESV या कोई ऐसे 4 किस्म का उसका क्या है ट्रांसलेशन है, तो एक ही सेंटेंस को कभी NIV में पढ़ेगा, उसी को उसमें KJV में पढ़ेगा, उसके NKJV में पढ़ेगा, इसे अलग अलग पढ़ के वो बाइबल का कीड़ा है, वो बाइबल का कुछ भी वचन उसको बोलने से वो बोल सकता है। बड़ा बड़ा प्रीचर लोग उससे क्या करता है, सलाह लेता है कि उसमें क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति प्रभु का वचन हमेशा मेडिटेट करता है, ध्यान करता है। Psalm नंबर 1 वर्स 1, वो अपने आप को सेपरेट करता है, डेडिकेट करता है, कंसेक्रेट करता है, ताकि परमेश्वर का वचन को वो पढ़ सके, परमेश्वर का समय दे सके। आप देखिएगा बहुत सा व्यक्ति लोग क्या करता है, भीड़ में नहीं बैठता है, ज्यादा समय वो क्या करता है, वो ऐसे आलोचना में नहीं बैठता है, थोड़ा देर बैठ के चला जाता है। वो अपने आप को कंसेक्रेट करता है, रूम का अंदर में जाके वो बैठ के प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु का वचन को देखेगा, कुछ काम करेगा प्रभु के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या है, डेडिकेट कर दिया। मैं जो जिंदा रहा हूं, मैं हूं अभी, मैं परमेश्वर के लिए दे दिया हूं, इसलिए वो भीड़ भाड़ में बैठ के ऐसे कोई जो ऐसे गॉसिपिंग नहीं करके वो जाके कंसेक्रेट करके चुपचाप बैठता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है। धार्मिक व्यक्ति का वो एक नेचर है। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 22 to 27 पढ़ने से आपको पता चलेगा, मेक्स इट हिज रूल ऑफ लाइफ। वो प्रभु का वचन को अपना लाइफ का एक हिस्सा, वो मेरा लाइफ को चलाने वाला एक रूलर बोल के मानता है। वो बाइबल का वचन को देखता है, कोई भी काम करने का पहले वो उतना अपना वो बाइबल में ढूंढता है, ये काम अगर मैं करूं तो क्या होगा, ये काम करूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बाइबल इसे मुझे अनुमति देता है या नहीं, वो उसको देखता है, उसका बात क्या करता है, रूल, अपना लाइफ का रूलर मानता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति का अलग होता है, वो बाइबल का हिसाब से ही चलेगा, बाइबल का बाहर में वो नहीं चलेगा। ईश्वरेर बाक्यत चलिब, तार बाहिरे तेओ नचले। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 16-17, 2 टिमोथी 3:16-17, मेक्स इट हिज स्टैंडर्ड ऑफ फेथ एंड रिलीजियन। उसका विश्वास और धर्म का वो एक आधार बनाता है। बाइबल का वचन को वो क्या करता है, अपना विश्वास और धर्म का आधार एक स्थान देता है वो परमेश्वर का वचन को। धार्मिक व्यक्ति का वो क्या है, नेचर है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15, इफिसियन 3:4 में लिखा है, रीच इट टू गेन नॉलेज एंड विजडम। प्रभु का वचन को ध्यान करता है ताकि उसमें से उसको नॉलेज मिले और इसको ज्ञान मिले। अब आज दुनिया का ज्ञान बहुत है, किसी भी आज देखिएगा जो पढ़ाई करने वाला, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने वाला लड़का लड़के लोग सुंदर से इंग्लिश बोलते हैं, या साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति साइंस के बारे में जानता है, आर्ट्स पढ़ने वाला व्यक्ति उसका बहुत नॉलेज होता है, कॉमर्स पढ़ने वाला व्यक्ति नॉलेज होता है, और दुनिया का नॉलेज, ये नॉलेज से वो लोग हेवन नहीं जा पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का वचन को पढ़ता है, प्रभु का वचन से ज्ञान लेता है, प्रभु का वचन से वो बुद्धि लेता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही राह दिखाएगा आप कैसे जाएगा। और साइंस का थ्योरी या कोई कॉमर्स का जो फॉर्मूला आपको नया रास्ता नहीं दिखाएगा, वो रास्ता नहीं दिखाता है साइंस जाने के लिए। आप इंग्लिश आपको वर्ड उस पर में नहीं लेके जाएगा, आपको ले जाएगा प्रभु का वचन। इसलिए धार्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो नॉलेज पाने के लिए और उसको विजडम पाने के लिए ध्यान करता है। 1 पीटर 2 वर्स 1 to 3, रोमन चैप्टर 10:17 में लिखा है, फीड्स ऑन इट टू ग्रो स्पिरिचुअली। वो हमेशा बाइबल का वचन को खाता है ताकि आत्मा में बढ़े। हालेलुया। आत्मा में बढ़ने के लिए, आपको आत्मा मिला है अगर, तो आत्मा को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए प्रभु का वचन को खाना जरूरी होता है। और धार्मिक व्यक्ति हमेशा वो क्या करता है, वो प्रभु का वचन को खाता है, मतलब रीड करता है, स्टडी करता है। लेकिन दुष्ट लोग ऐसा नहीं करता है। बाइबल में लिखा है, He is like a chaff that winds drives away। वो एक धान का जो भूसी का जैसा होता है, वो हवा आके उसको लेके चला जाता है। बाइबल में जो आपका जो दुष्ट आदमी के बारे में बहुत सा लिखा है, वो एक घास का जैसा है। बाइबल में लिखा है वो एक जंगली जानवर का जैसा है। बाइबल में लिखा है वो पॉइजन रहने वाला सांप का जैसा है। वो एक जो बो होता है, जो धनु होता है, वो उसका थकने वाला धनु का जैसा होता है। वो एक हवा का जैसा होता है, अशांति सागर बोलता है। तो आप एक धार्मिक व्यक्ति बनना पसंद करेंगे या आप एक अधार्मिक व्यक्ति बनना पसंद करेंगे? आप
प्रभु का ब्लेसेड वन होना आप पसंद करेंगे, या आप प्रभु का कर्षित वन, आप प्रभु का श्रापित व्यक्ति होना पसंद करेंगे? ये चॉइस इज योर्स। आपका ये डिसीजन लेना है, आपको ये चॉइस करना है। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर और प्रार्थना में आगे जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ पवित्र 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 स्वर्ग में रहने वाला प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने सुंदर समय हमें दिया और आज का जो प्रभु ये सुंदर पवित्र विश्रामवार को पालन करने के लिए आपने हमें मौका दिया। और आज इस समय आपका वचन को प्रभु, आपका जो श्वास से जो प्रकट होने वाला वचन को आज ध्यान करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं तो अनुपयोगी अयोग्य दास हूं पिता, फिर भी प्रभु आपने मुझे इस्तेमाल किया। और जो मैं प्रभु वचन जो मुझे आपने पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया और ये वचन को आपका संतान लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपने मुझे आशीष किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपका आशीष से हमें भर दीजिए पिता। फिर से आपका आशीष आने दे। जो भी भाई बहन इस समय यहाँ उपस्थित है और जो लाइव के द्वारा प्रभु हमें जो देख रहा है, हमारे साथ जोड़े हैं प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका पवित्र लहू के द्वारा प्रभु उनका हर एक गलतियों को, अपराध को आप माफ कर दे पिता। आपका पवित्र लहू के द्वारा हर एक भाई बहन का गलतियों को, पाप को आप माफ कर दे। और जो भी दुष्ट आत्मा उन लोग का जीवन में काम कर रहा है प्रभु, इस दुष्ट आत्मा को मैं इस समय यीशु मसीह नासरी का नाम से हुक्म देता हूं, इसी वक्त निकल जा। हर एक भाई और बहन का जीवन में काम करने वाला दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह का नाम से हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त छोड़ दे। हर एक भाई का जीवन में से, हर एक बहन का जीवन में से दुष्ट आत्मा तो निकल जा, अभी इसी वक्त छोड़ दे यीशु का नाम से। यीशु का नाम से बीमार करने वाला, उन लोग का जो कोरोना वायरस से उन लोग को ग्रसित करने वाला, उनको दुख देने वाला शैतान, उनका बिजनेस में बाधा देने वाला शैतान, उन लोग को नौकरी में बाधा देने वाला दुष्ट आत्मा, घर परिवार में झगड़ा लाने वाला शैतान, अशांति लाने वाला दुष्ट आत्मा, यीशु का नाम से तू छोड़ दे। यीशु मसीह नासरी का नाम से मैं हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त छोड़ दे। हालेलुया। रावशा का बारा राबारी बीरी ओ रावशा का बाबा 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 होता राबा। इस समय पवित्र आत्मा जितना भी भाई बहन इस समय मुझे प्रभु जो देख रहा है, प्रभु इस वीडियो को देख रहा है, हर एक का ऊपर आपका अनुग्रह पवित्र आत्मा का आशीष आने दे प्रभु, आपका आशीष आने दे प्रभु। आप कहते हैं ब्लेसेड वन, प्रभु आपने कहता है ब्लेसेड वन, मैंने प्रभु उस ब्लेसेड वन, ओ धन्य है जो मैं उसको बारे में उन लोगों को बताया प्रभु। आज ये वचन जितना भी भाई बहन सुना है, हर एक व्यक्ति कोशिश करने दे प्रभु, उसका हृदय में एक आग जलने दीजिए पिता, ताकि वो लोग भी प्रभु आपका धन्य व्यक्ति है आप कह पाएंगे। बाइबल उनको दिखाएगा कि हाँ तू धन्य व्यक्ति है। आप उन लोग का जीवन में आग को जलने दीजिए। ओ पवित्र आत्मा का आग आने दे इस समय, पवित्र आत्मा का आग हर एक का ऊपर आने दे। फिल हालेलुया, फिल हालेलुया, फिल हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको आशीष दे पिता। इस समय भाई बहन लोग को पवित्र आत्मा छू रहा है, जिसको जिसको पवित्र आत्मा टच किया है, आप लोग कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। आप इस वीडियो को अगर बाद में भी देखेंगे, अगर उस समय पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करता है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा। मैं स्पेशली आपको नाम लेके प्रार्थना करूंगा। इस समय बीमारी आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से। तकलीफ से दूर होते जा रहा है यीशु का नाम से। बहुत बहन का हृदय में ये जलन हो रहा है, हाँ मैं भी एक बाइबल कहने वाला एक धन्य व्यक्ति बनना चाहता हूं। हाँ आपका जीवन में प्रभु आशीष कर रहा है इस समय। प्रभु आपको आसाद आपको राह दिखाना चाहता है, आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। आप प्रभु का पास आइए, आप प्रभु का वचन को ध्यान कीजिए। एक धार्मिक व्यक्ति बनिए। अधार्मिकता से पूरा दुनिया भरा हुआ है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति बहुत कम है। आप एक धार्मिक व्यक्ति बनिए, क्योंकि बाइबल और प्रभु जो अब आएंगे, बाइबल कहती है वो धार्मिक को ही साथ लेके जाएंगे, अधार्मिक को साथ लेके नहीं जाएंगे। दुनिया अधार्मिकता से भरा हुआ है, लेकिन आपको धार्मिक बनना है ताकि आप प्रभु का साथ स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर आप धार्मिक व्यक्ति बनेंगे, प्रभु आपको लेके जाएगा, लेके अपना साथ रखेगा और प्रभु का साथ आप रहेंगे, आप प्रभु का साथ रहेंगे और प्रभु का स्तुति दे पाएंगे। हालेलुया। इस समय में हर एक भाई बहन का जीवन में आशीष
आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। नौकरी का ऊपर प्रभु आपका आशीष आने दे, उनका बिजनेस का ऊपर आपका आशीष आने दे, उन लोग का जो भी प्रोफेशन है उसका ऊपर आपका आशीष आने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु आपका संतान लोग का जो परिवार में अशांति है आप उसको दूर कीजिए। जो आपका संतान लोग का प्रभु उसका घर हस्बैंड वाइफ का बीच में आपका प्यार होने दे, आशीष आने दे। पिता धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना, आशीष किया। आज इस सुबह आपने जो मुझे वचन दिया, इस वचन को आपने अंत तक चलाया, बोलने के लिए दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं अपने आप को उपस्थित हर एक भाई बहन को और जो लाइव के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं हर एक को प्रभु, और जो वीडियो देख रहे हैं हर एक को मैं आपका पवित्र